Friends, welcome on Europedia, and this video is very thought-provoking video, and it is made after we have done the research related to the opportunities which candidates get in India and opportunities which our researchers get in USA as far as postdoctorate fellowship is concerned. You know what is postdoctorate fellowship is? It is a basically not fixed duration fellowship which is done after your PhD is complete. So why you do postdoctorate fellowship is maybe you get trained to become faculty later on with some faculty members in premium institutes like IITs or any other institute. You learn more about how to get the projects from the industries, work on those projects. So basically you are grooming yourself to become a faculty or to become a researcher in any particular company. So once you have done PhD, which is academic degree, postdoctorate fellowship gives you hand-on experience and more practical experience to enter into the job market. When it comes to India, number of postdoctorate fellowships are very less, and even more surprising is 80% of the postdoctorate fellowship which are in basic sciences, that is good, but in engineering domains they are very less. Not even 20% postdoctorate fellowships are there in premium institutes of India, that is IIT, Indian Institute of Technology. The word is technology, that means majority of the undergrads and postgraduates in India are in technology domain or engineering domain. Science graduates are less. At the undergrad or post-graduation level, science graduates are lesser than engineering graduates. But when it comes to postdoctorate fellowship, then the number is highly skewed. Most of the postgraduate fellows are in science and very less in engineering. There can be many reasons for that, but one of the reasons is very less salaries also offered in postdoctorate fellowship. My earlier video, I have published a video on comparative analysis of the salaries. तो सैलरी भी बहुत कम है पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज़ का इंडिया में, 50-60 हज़ार के आसपास सैलरी मिलता है, जो एक यंग जूनियर इंजीनियर आफ्टर डिप्लोमा को मिल जाता है गवर्नमेंट के अंदर. अगर आप एक जेई की पोस्ट लेते हो आफ्टर डिप्लोमा, आपने 10th किया, फिर आपने डिप्लोमा किया और आप जेई लग गए, उसका सैलरी इतना है. मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जेई हैं और जो इतनी सैलरी लेते हैं. आपने इंजीनियरिंग किया, बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड था, फिर आपने मास्टर्स किया, बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड था, फिर आपने पीएचडी किया, पीएचडी में आपने बहुत अच्छे रिसर्च पेपर लिखे, उसके बाद आप समझ रहे हैं आपकी एज हो जाती है 37, 27, 28 साल मिनिमम. पीएचडी करने के बाद आप 30 के आसपास होते हैं. उस टाइम पे पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप में इतनी कम सैलरी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर नहीं करते या आपको नहीं मिलती. सेकेंड रीज़न, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज़ की रिक्वायरमेंट वहाँ पड़ती है जहाँ पे लैब के अंदर बहुत सा रिसर्च वर्क है या इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर प्रोफेसर्स इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया कि बहुत से प्रोजेक्ट्स वो लाएँ सो दैट पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज़ को अपॉर्चुनिटी मिले. अब ये मैंने एक एनालिसिस जो किया है मेरी टीम ने सारी ने मिलके कि क्या पोस्ट डॉक्टरेट्स आईआईटीज़ और यूएस यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंस क्या है. तो 20,000 के आसपास पीएचडी हैं हमारी सारी 23 आईआईटीज़ में. और आप जानते हैं आईआईटीज़ डिवाइडेड हैं इन ओल्ड आईआईटीज़ एंड न्यू आईआईटीज़. सो ओल्ड आईआईटीज़ के पास ज़्यादा पीएचडीज़ हैं, ज़्यादा पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज़ हैं. नए आईआईटीज़ के पास पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज़ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 10 से कम हो. पूरे आईआईटी के अंदर 10 से भी कम पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज़ हैं. न्यू आईआईटीज़ आर इमर्जिंग इंस्टीट्यूट्स. ओल्ड आईआईटीज़ में 3 से 4 हज़ार पीएचडीज़ होते हैं कैंपस के अंदर. अगर कोई बड़ा आईआईटी ले लिया जाए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जैसा, तो 3 से 4 हज़ार पीएचडी हो सकते हैं कैंपस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे. नई आईआईटीज़ में आईआईटी हैदराबाद के पास पीएचडी नंबर अच्छा है, 1300 के आसपास पीएचडी हैं आईआईटी हैदराबाद के आसपास. एंड बिफोर आई गो फॉरवर्ड, ये मेरा सारा डाटा जो है ये वेबसाइट से उठाया गया है, इंटरनेट से उठाया गया है, और हमने ये इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट से सीख किया है जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं. सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट डॉक्टरेट आईआईटीज़ में मिल मिला के 1000 से 2000 के बीच में होंगे. इसका एग्जैक्ट डाटा तो आरटीआई के थ्रू लेना पड़ेगा सारी आईआईटी से, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमें डाटा मिला है वेबसाइट्स वगैरह से वो इतना है कि 1000 से 2000 के बीच में हो सकता है. और आईआईटी बॉम्बे बहुत अच्छा किया है पिछले 10 साल में. आईआईटी बॉम्बे ने 25 पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज थे 2014 में, और अब 2024 में 400 प्लस पोस्ट डॉक्टरेट हैं. तो आईआईटी बॉम्बे इज डूइंग गुड इन दैट. नंबर ऑफ पोस्ट डॉक फेलोज जो ओल्ड आईआईटीज़ में उनमें राइज हुआ है नो डाउट.
80%, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 80% बेसिक साइंसेज में हैं और इंजीनियरिंग में बहुत कम है। बेसिक साइंसेज में अच्छे होने चाहिए क्योंकि उसमें रिसर्च ज़्यादा होती है, आई एग्री टू दैट, लेकिन इंजीनियरिंग में नंबर ज़्यादा आना चाहिए। रफली आईआईटीज़ को अगर कंपेयर करो पीएचडीज वर्सेस पोस्ट डॉक, तो हर 10 पीएचडी के ऊपर एक पोस्ट डॉक का नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है इंडिया के अंदर, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की सारी जो इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसमें पोस्ट डॉक्टरेट बहुत ही कम होंगे। सो यूजीसी एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को नंबर ऑफ पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स बढ़ानी पड़ेंगी, तभी इन इंस्टीट्यूट्स में पोस्ट डॉक आएंगे। नए आईआईटीज़ में तो बहुत ही नंबर कम है, 10 से 50 होगा। ओल्ड आईआईटीज़ में 100 से 500 हो सकता है। कुछ ओल्ड आईआईटी कानपुर है उसमें 100 के आसपास है, आईआईटी बॉम्बे में 500 के आसपास है, तो ये नंबर वेरी करता है इवन ओल्ड आईआईटीज़ में। कोई बड़ा डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे का अगर मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट ले लूँ, उसमें कितने पोस्ट डॉक फेलोज होंगे, वो आप देखेंगे कि वो पोस्ट डॉक आपके 40-50 के आसपास होंगे। और इसीलिए वो पोस्ट डॉक ज़्यादा होने का मतलब है कि वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा रिसर्च हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स, क्योंकि टिपिकली प्रोफेसर को पोस्ट डॉक चाहिए होते हैं जो रिसर्च या उसको करना है, प्रोजेक्ट्स हैंडल करने हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का, तो मेरे को लगता है कि फ्रेंड्स ये जो पोस्ट डॉक हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जैसे हार्वर्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें 4000 पीएचडी हैं, लेकिन पोस्ट डॉक्टरेट डबल हैं उससे, 7000 पोस्ट डॉक्टरेट हैं। आई थिंक हार्वर्ड इज द ओनली इंस्टीट्यूट जिसमें पोस्ट डॉक्टरेट का नंबर डबल है कंपैरिजन टू आपके ऑलमोस्ट डबल पीएचडीज के। बाकी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखेंगे, जो हाई रैंकर यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, या 100 के अंदर जो रैंक आता है, उनमें भी आप देखोगे कि पोस्ट डॉक्टरेट का नंबर इंडिया के आईआईटी बॉम्बे जितना ही है, मतलब बेस्ट जो नंबर हो सकता है इंडिया के अंदर है, उतना उन यूनिवर्सिटीज़ में है। जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी रेशियो बहुत अच्छा है। जैसे अगर हम टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी की बात करें जो 800 के आसपास रैंक है, तो उसमें भी 3000 पीएचडीज के ऊपर 300 पोस्ट डॉक फेलोज हैं। अगर कंपैरिजन ये टेबल देखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्लियरली आपको विजिबल है। आईआईटी बॉम्बे में 4000 पीएचडी हैं, पोस्ट डॉक 450 के आसपास होंगे। आईआईटी दिल्ली में भी 4000 पीएचडीज हैं, 300 प्लस पोस्ट डॉक होंगे। आईआईटी मद्रास में 3000 के आसपास पीएचडीज होंगे और 300 नंबर है। आईआईटी मद्रास बहुत ज़्यादा फोकस करता है एमएस रिसर्च के ऊपर, एमएस के ऊपर। आईआईटी कानपुर में 2300 पीएचडीज के ऊपर 100 पोस्ट डॉक होगा। आईआईटी हैदराबाद में नंबर आपका ये दिख रहा है, और पटना जो आईआईटी है और नए आईआईटी में नंबर बहुत कम है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो हार्वर्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें पोस्ट डॉक्टरेट नंबर पीएचडी से ऊपर है। अदरवाइज स्टैनफोर्ड वगैरह में अगर आप देखोगे तो नंबर वो पीएचडीज का ज़्यादा है। ये थोड़ा सा वेरिएशन इंस्टीट्यूट में है, जैसे आईआईटी मद्रास एमएस को फोकस करता है, स्टैनफोर्ड पीएचडीज को फोकस करता है, हार्वर्ड पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज को फोकस करता है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू नो। लेकिन इवन पर्ड्यू, टेक्सास A&M, एनटीटीयू में अगर आप देखोगे तो नंबर काफ़ी अच्छा है। ये कंक्लूजन है इस सारे का। और अगर आप देखोगे तो पोस्ट डॉक्टरेट ऑलमोस्ट हाफ हैं ओल्ड इंस्टीट्यूट में, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड की, जहाँ रिसर्च बहुत अच्छा चलता है, वहाँ पोस्ट डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपने ये देखना है कि कोई इंस्टीट्यूट रिसर्च में कितना अच्छा काम कर रहा है, ये देखो वहाँ पे पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज़ को कितनी सैलरी मिलती है और कितने पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज़ हैं। ये 2 पैरामीटर हैं जो मेरे को लगता है किसी भी इंस्टीट्यूट को ग्लोबली बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट बनाने के लिए रिसर्च की फील्ड में। एकेडमिक एक चीज़ है, रिसर्च एक और चीज़ है। तो पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज एक्चुअली are a parameter to tell you about the research. I hope this analysis will give you some insight about the research things going on in India and global institutes. Thank you.